Hello everyone. So in the same sequence, today we are going to talk about another application of biotechnology in the field of medicine. In our last class, we had discussed about the application of biotechnology in the field of medicine for the production of human insulin. In this class, we'll talk about another application of biotechnology in the field of medicine, that is molecular diagnosis. So first thing, what is molecular diagnosis? Molecular diagnosis, you can word the diagnosis of disease. Means under this technique, molecular diagnosis, we'll study like how we diagnose the disease in very early stage at the molecular level using many group of technique under the biotechnology. So let's start the molecular diagnosis. What is molecular diagnosis? You all know very well. For the treatment of a disease, what is the first step for the treatment of a disease? Very early diagnosis of this pathogen. Means which type of pathogen, bacteria or virus that attack on our body. First of all, we have to find out. We have to diagnose like which type of pathogen that attack in our body. So first thing is that early diagnosis of that pathogen, then treatment is possible. So how we can diagnose the disease in very early stage? If we use like conventional method like X-ray, through the serum diagnosis, through the urine test, this is not possible to diagnose a disease in very early stage, because through the conventional method we can diagnose the disease in when the infection or the pathogen present in very high amount, in very high concentration, then only we can diagnose the disease. Like first, like any pathogen that enter in our body, then what happen, that it produce some symptom, then we go for diagnosis. Then we find out the through the serum analysis, through the urine analysis, through the X-ray, then we can diagnose the disease. But at that time, the infection is very high, or we can say the concentration of pathogen is very high at that time. So, but we have to diagnose any disease in very low concentration. When the pathogen is enter and it present in very low concentration, at that condition we have to diagnose this disease. So how we can diagnose in very early stage of this disease? Through the using the biotechnological technique. So which type of biotechnological technique they use for molecular diagnosis of disease in very early stage? These techniques are recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology, you can use the word RDT. Most popular name of recombinant DNA technology is RDT. Through the recombinant DNA technology, then the second most important technique for the disease diagnosis is polymerase chain reaction. What is polymerase chain reaction? Polymerase chain reaction, PCR. It is most commonly used technique for the disease diagnosis nowadays in different laboratories. Then enzyme-linked immunosorbent assay. It is also known as ELISA. So these three most important techniques that we will be talking about in this lecture, they use for molecular diagnosis or for the early stage diagnosis of any disease. So first, there are many diseases. How we can use PCR for the disease diagnosis? PCR is a method, polymerase chain reaction, PCR. This is a method for disease diagnosis, like how we can diagnose disease in very early stage. Like any pathogen that enter in our body, any pathogen like this bacteria, virus, it enter into our body in very low concentration. Then how we can determine the concentration at very low concentration? इतना कम concentration में है like उसका genetic material, फिर उसको हम कैसे determine करेंगे? Using the PCR method. What is the principle of PCR method? Amplification. Amplification means using amplification method. What is amplification? Amplification method. Amplification means जब ये बैक्टीरिया बहुत लो कंसेंट्रेशन में अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, उस टाइम लाइक ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए बहुत कम कंसेंट्रेशन में है, इसका हम पीसीआर करेंगे. पीसीआर मींस एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन मींस
कॉपी नंबर इंक्रीज करना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत कम अमाउंट में जहां जेनेटिक मटेरियल है उसका पीसीआर करेंगे। पीसीआर क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है, मींस जेनेटिक मटेरियल के कॉपी नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके कॉपी नंबर को बहुत सारा बढ़ा देगा। अभी हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल जो कि वायरस या बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी में रिलीज किया है, उसको पीसीआर करके एम्पलीफाई करके बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में हम बना लेंगे लेबोरेटरी में। मींस जो पेशेंट था जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है, वहां से हम बहुत कम उसका जेनेटिक मटेरियल ले लेंगे लो कंसंट्रेशन में, देन उसका पीसीआर करेंगे, एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस और मेथड के थ्रू हम उसके कॉपी नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे। अब कॉपी नंबर जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं उस पैथोजेनिक डिजीज को। In present time, in many laboratory for the detection of HIV, human immunodeficiency virus, in a suspected AIDS patient, जब उसमें सिम्टम आने स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, HIV का जो सस्पेक्टेड पेशेंट है एड्स का, उसमें HIV इन्फेक्शन का पता करने के लिए पीसीआर का मोस्ट कॉमनली जनरल मेथड इसका यूज कर रहे हैं। एंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अदर टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, पीसीआर इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम in many different laboratories. Now, what is enzyme-linked immunosorbent assay? ELISA test. ELISA test is what is the principle of ELISA? Principle of ELISA is based on antigen-antibody interaction. Antigen-antibody interaction. Through this method, we can determine what is antigen antibody interaction, like any pathogen that enter in our body, then what happen, our body, our immune system produce some response against that pathogen. Like when any bacteria, any virus enter into our body, that act as a foreign particle for our body, then what happen, against this foreign particle, against this antigen, our immune system produce antibody. Means when any pathogen enter in our body, our immune system produce antibody against this. Then antigen antibody interaction, we can determine any disease. Like if we do ELISA, then we can determine the concentration of antigen. If our अगर हमारी बॉडी में एंटीजन की अमाउंट, एंटीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब हम पता कर सकते हैं कि पैथोजन ने अटैक किया है। और अगर एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी पैथोजन ने अटैक किया है, क्योंकि एंटीबॉडी तभी प्रोड्यूस हुए हैं जब पैथोजन ने एंटर किया है, वो एंटीजन की तरह वर्क कर रहा है, तब इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए हैं। तो एंटीजन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करके भी हम एलिजा करके टेस्ट डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज को। एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करके भी हम कर सकते हैं, एलिजा के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गई एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट टेस्ट, जिसके थ्रू हम डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। पीसीआर के थ्रू बहुत सारा कॉपी नंबर इंक्रीज करके कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं कैंसर पेशेंट, इफ एनी जीन इज म्यूटेटेड इन कैंसर पेशेंट, देन हाउ वी कैन डिटरमाइन और हाउ वी कैन डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन इन कैंसर पेशेंट। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये वाला जीन म्यूटेटेड है, तब ये कैंसर कॉज कर रहा है कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट में। We can determine mutated gene in very early stage. This is you can see this is a single stranded DNA और single stranded RNA, कुछ भी हो सकता है। इसकी सीक्वेंस हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा जीन में म्यूटेशन है, यहाँ पे कोई जीन म्यूटेटेड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा जीन में म्यूटेशन है पूरे डीएनए की सीक्वेंस में। हाउ वी कैन डिटरमाइन दिस, वी कैन डिटरमाइन दिस यूजिंग ए प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब। प्रोब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस हम तैयार करेंगे, जिसको हम प्रोब बोलते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस हम प्रिपेयर करेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस रेडियो एक्टिवली लेबल्ड रहेगा। रेडियो एक्टिवली लेबल, एक रेडियो एक्टिव लेबल प्रोब प्रिपेयर करेंगे इस प्रोब का यूज करते हुए। अब ये प्रोब इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, देन व्हाट हैपन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमेशा आपस में बॉन्डिंग करती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसको ये हमने प्रोब लिया, ये हमारा डीएनए सीक्वेंस था, इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब प्रिपेयर किया जो कि रेडियो एक्टिव था। अब रेडियो एक्टिव प्रोब है, उसको हम रेडियो एक्टिव प्रोब को डिटरमाइन करने के लिए
रेडियो एक्टिव एसेज के थ्रू इस सीक्वेंस को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा म्यूटेशन कहाँ पे है, विच जीन इज म्यूटेटेड, हाउ वी कैन डिटरमाइन। जहां नॉर्मली अगर प्रॉब अगर ये नॉर्मल है और ये जीन सीक्वेंस हमारा नॉर्मल है तो इसके साथ कंप्लीटली पेयरिंग कर लेगा, कंप्लीमेंट्री है इसलिए कंप्लीटली पेयरिंग हो जाएगी। पर जहां जो जीन में म्यूटेशन है वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। जैसे कि ये वाला यहाँ पे कोई म्यूटेशन था तो ये बाकी जो सीक्वेंस है वो तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके साथ पेयरिंग कर लेगी, लेकिन यहाँ वाला जो म्यूटेशन है, म्यूटेटेड जो डीएनए सीक्वेंस है वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। तो हम इसको रेडियो एक्टिव प्लेट पे जब देखेंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है ये हमें उस पर शो करेगा, तो जब रेडियो एक्टिव प्लेट पे हम इसको हम देखेंगे तो यहाँ वाला जो डीएनए पार्ट है वो शो नहीं होगा, वो नहीं दिखेगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट है इसमें इस पोजीशन पे म्यूटेशन था। तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली सीक्वेंस को रेडियो एक्टिव प्रॉब दे करके। तो ये कुछ मेथड है जो कन्वेंशनल मेथड है उनके थ्रू हम अर्ली स्टेज में डिजीज डायग्नोसिस नहीं कर सकते। उनको उनकी फुलफिल करने के लिए, वो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे डायग्नोस करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अर्ली स्टेज में डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए।